So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the next lecture of ionic equilibrium. तो हमने कॉमन आयन इफेक्ट तक पढ़ लिया, क्वेश्चंस देख लिए, पॉलीप्रोटिक एसिड्स के बारे में देख लिया, ठीक है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थ्री कंसेप्ट्स व्हिच आर यूज्ड टू क्लासिफाई एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है, फिर उसमें आगे बढ़ते हैं. ये पीडीएफ मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा या टैब पे डाल दूंगा. राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस रहते हैं इसके ऊपर बेस्ड. थ्री कंसेप्ट्स और theories to classify acids and bases. Acids and bases. Right. तो इसमें सबसे पहला जो है that is Arrhenius theory. Second one is Bronsted-Lowry theory or concept, and third one is Lewis concept. ठीक है, three theories are there: Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory or concepts, and next one is what? Next one is the Lewis concept. Right. Now अब देखो, ये सारी चीजें हम पीडीएफ से ही पढ़ेंगे. बहुत सारी चीजें दी गई पीडीएफ में, और जो अलग से होना होगा वो मैं नोट्स के फॉर्म में देता हूं. ठीक है. राइट. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बेसिक डेफिनेशन. एसिड क्या है? Acid is a compound which contains one or more hydrogen atoms replaceable partially or completely by a metal or positive radical to produce a salt. In simple terms, जो मैंने बताया, acid क्या होता है? Acid substance that has replaceable hydrogen atoms. And replaceable hydrogen atoms मतलब क्या? Those hydrogen atoms which are attached to more electronegative atoms such as fluorine, oxygen and nitrogen. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now first theory या concept जो है हमारे पास, that is what? Arrhenius concept. सिंपल जो लिखा है बस उस पर फोकस करेंगे हम लोग. तो Arrhenius concept के हिसाब से क्या है? According to this concept जो दिया गया है उस पर सीधा फोकस करते हैं. तो क्या कहा जा रहा है Arrhenius concept के बारे में? क्या कहा जा रहा है? According to this concept, all substances which give H plus ions when dissolved in water are known as acids, while those which ionize in water to furnish OH minus ions are known as what? Bases. मतलब क्या? As per Arrhenius theory, क्या बताया जा रहा है? Acids क्या है? Those which furnish H plus ions or H3O plus ions as only positively charged ions when dissolved in water. वाटर का होना जरूरी है. उन एसिड्स को क्या कहा जाता है? आर नोन एज व्हाट? Arrhenius acids. Those substances which on dissolution in water they furnish H plus or H3O plus ions as the only positively charged ions. When dissolved in water are known as what? Arrhenius acids. ठीक है, राइट. जबकि Arrhenius bases के बारे में क्या?
those substances which furnish OH minus ions as the only negatively charged ions when dissolved in water are known as Arrhenius bases। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं आर्हीनियस एसिड्स के बारे में, क्या कहा जा रहा है, जैसे सपोज करो इफ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे अभी सिंपल सा एग्जांपल में लेता हूं HCl गैस plus H2O, this will give what? H plus plus Cl minus aqueous and H plus aqueous, and ये जो H plus aqueous है ये इसमें बेसिकली क्या है, ये H plus aqueous जो है इसमें बेसिकली क्या है, H plus plus water, वाटर का ऑक्सीजन क्या करेगा, H plus को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के देगा, समझे क्या, ये इस तरह से लोन पेयर जो है, इसके पास जो लोन पेयर है ये अपना एक लोन पेयर शेयर करेगा H प्लस के साथ, और दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस। तो बेसिकली देखा जाए आर्हीनियस एसिड, अगर हम लोग बात करें यहां से आर्हीनियस एसिड, अगर मैंने एग्जांपल लिया HCl गैस प्लस वाटर, ये क्या देगा, दिस विल गिव H3O प्लस प्लस Cl माइनस aqueous, so the only positively charged ion which is coming is what, H3O plus। Similarly अगर मैं आर्हीनियस बेस की बात करूं तो NaOH सॉलिड प्लस वाटर, ये क्या देगा, Na प्लस aqueous प्लस OH माइनस aqueous। तो जब हमने NaOH पानी में डाला तो OH माइनस इज द ओनली नेगेटिवली चार्ज आयन, और कोई नेगेटिवली चार्ज आयन नहीं आया, तो NaOH क्या हो गया, एक तरह से ये आर्हीनियस बेस हो गया। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, राइट। तो आर्हीनियस कंसेप्ट, ऑल सब्सटेंसेस व्हिच गिव H plus ions when dissolved in water are known as acids, are known as Arrhenius acid, while those which ionize in water to furnish OH minus ions are known as what, they are known as Arrhenius bases। ठीक है, राइट। तो जैसे आर्हीनियस एसिड Ha सिंपल, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या देंगे, H प्लस प्लस A माइनस, एंड H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या दे देगा, ये H3O प्लस दे देगा। उसी तरह बेस BOH क्या देगा, B प्लस प्लस OH माइनस। अब देखो सिंपल, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है HCl को पानी में डिसॉल्व करो, क्या आएगा, H प्लस या H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो HCl क्या है, आर्हीनियस एसिड है। H2SO4 प्लस वाटर क्या देगा, डाइबेसिक एसिड बताया, 2H प्लस प्लस सल्फेट। H2SO4 क्या है, आर्हीनियस एसिड है। फिर NaOH क्या देगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, NaOH क्या है, आर्हीनियस बेस है, समझे क्या। NH4OH वीक बेस है, क्या देगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, NH4OH भी क्या है, आर्हीनियस बेस है। ठीक है, राइट। देन उसके बाद ये हमें पता है कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, which involves a reaction which involves a reaction between H plus and OH minus ions to form water। तो जैसे NaOH plus HCl gives what, NaCl plus water। तो एक्चुअली यहाँ पे रिएक्शन क्या है, NaOH का OH minus and HCl का H plus, they both combine to give what, water, getting ना। so this is actually the neutralization reaction, right। फिर यहाँ पे वही बता रहे हैं कि actually free H plus ions do not exist in water, they combine with solvent molecules that is hydrated to form hydronium ion or hydroxonium ion। जैसे H plus plus water gives what, H3O plus। मैंने बताया कि H plus aqueous मतलब क्या, H3O plus होता है, right। Now ionization of acids in the aqueous solution should be represented as, जैसे मैंने बताया HCl plus water gives H3O plus plus Cl minus, getting ना। Arrhenius acids, ionization of Arrhenius acids, H2SO4 plus water will give what, 2H3O plus plus SO4 minus। मैंने ये ऑलरेडी बता दिया तुमको, किसमें, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन डाइप्रोटिक एसिड्स। ठीक है, राइट। नाउ ये वाला पॉइंट जो है ये मैं थर्मो में पढ़ाऊंगा, इसको मैं स्किप कर रहा हूं अभी जितना इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ा रहे हम लोग। नाउ ऑफ आर्हीनियस, लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस एसिड,
let us see the limitations of Arrhenius acid, Arrhenius concept, drawbacks of Arrhenius concept, Arrhenius acid based concept के क्या drawback है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू दो सॉल्यूशंस, ओनली टू एक्वस सॉल्यूशन। जैसे मैंने बताया प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है नेसेसरी है। सब्सटेंस जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर मैंने कहा HCl प्लस वाटर, मतलब क्या, ये क्या कह रहा है, सबसे पहले फॉर एन एसिड टू बी Arrhenius acid, ये इंपॉर्टेंट है, और फॉर अ बेस टू बी Arrhenius base, solvent must be water. That means what? That means aqueous solution. Presence of aqueous solution is necessary. मतलब क्या, जैसे अगर सपोज करो यहां पे ये लिया मैंने वाटर, ये जो है वाटर है, और इसमें मैंने डाला क्या, HCl गैस को ऐड किया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा HCl का aqueous solution, and HCl का जो aqueous solution है which will actually exist as what, which will actually exist as H3O plus aqueous plus Cl minus aqueous, करेक्ट ना। तो H3O प्लस तभी आ सकता है जब वाटर रहेगा, ठीक है ना। हमने क्या देखा, आर्हीनियस एसिड क्या होता है, दो सब्सटेंसेस विच डिसॉल्व इन वाटर टू गिव H3O प्लस आयंस एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। तो H3O प्लस तभी आ सकता है जब H प्लस को वाटर मिलेगा और तब जाके क्या बनेगा, H3O प्लस। इस वजह से सब्सटेंस आर्हीनियस एसिड तभी कहा जाएगा जब तक उसको वाटर एज अ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। अगर हम उसको किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो फिर वो आर्हीनियस एसिड नहीं होगा, वो क्या होगा हम लोग ब्रॉन्स्टेड में देखेंगे, ठीक है, राइट। तो इस केस में क्योंकि H3O प्लस आ रहा है, इस केस में इसको हमने क्या बोल दिया, आर्हीनियस एसिड बोल दिया। इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया गया आर्हीनियस एसिड। ऑन दी अदर हैंड अगर हमने वाटर ना लेकर के, सपोज करो मैंने कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लिया, मैंने जो है आई हैव टेकन अनदर सॉल्वेंट आई हैव टेकन इज CH3COH, प्योर CH3COH, ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने डाला HCl एज अ गैस, राइट। तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी सोल्यूशन बनेगा, HCl और एसिटिक एसिड का सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अ सोल्यूशन हैविंग HCl प्लस CH3COOH, बट यहां पे देयर इज नो वाटर, मतलब दिस इज नॉट एन एक्वस सोल्यूशन। इस वजह से therefore HCl is not an Arrhenius acid in this case। इस केस में HCl जो है Arrhenius acid नहीं है, बिकॉज यहां पे there is no H3O प्लस। बात समझ में आई क्या, यहां पे कोई भी H3O प्लस नहीं है, इस वजह से HCl यहां पे जो है Arrhenius acid नहीं है। इसी वजह से आर्हीनियस कंसेप्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, सब्सटेंस एसिड या बेस तभी कहलाएगा जब तक वो एक्वस सॉल्यूशन में है। अगर एक्वस सॉल्यूशन के अलावा हमने कोई और सॉल्वेंट यूज कर लिया तो फिर भले वो HCl है, HCl को पानी में डालोगे एसिड कहलाया जाएगा, HCl को किसी और सॉल्वेंट डालोगे उसको एसिड नहीं कहा जाएगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका, आर्हीनियस कंसेप्ट का। क्या कह रहे हैं कि इट इज एप्लीकेबल ओनली टू एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट शुड बी नेसेसरली व्हाट, वाटर। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज the presence of water is absolutely necessary. Dry HCl is not taken as an acid as per Arrhenius के हिसाब से dry HCl को एसिड नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, Arrhenius कंसेप्ट के हिसाब से we do not take dry HCl as an acid because उसमें जो है वाटर नहीं है, मतलब वो जो है H3O प्लस नहीं दे सकता है। in the absence of water HCl will not at all dissociate। बात समझ में आ गई, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट, द कंसेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन्स, जो मैं नेक्स्ट वाला पॉइंट बता रहा हूं, दिस कंसेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन्स द एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। मतलब अगर सॉल्वेंट पानी के अलावा कुछ और यूज कर लिया तो फिर भले HCl को तुमने HCl लिया है, उसको तुमने किसी और सॉल्वेंट में डाल दिया, पानी नहीं लिया, कोई और सॉल्वेंट ले लिया, तो फिर उसको तुम एसिड नहीं बोल सकते आर्हीनियस के हिसाब से। तुमने NaOH लिया सॉलिड,
मगर तुमने उसको पानी में ना डाल के तुमने उसको किसी और सॉल्वेंट में डाल दिया, अल्कोहल में डाल दिया, एसिटिक एसिड में डाल दिया, करेक्ट ना, किसी और सॉल्वेंट में डाल दिया, फिर उस केस में तुम NaOH को बेस नहीं बोल सकते, आरईएनएस बेस नहीं बोल सकते, ठीक है, राइट। सो दिस कंसेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। And then third, it fails to explain the acidic nature of non-protic compounds such as SO2, NO2, CO2, P2O5, etc., which do not have hydrogen for furnishing H plus ions. Getting ना? जबकि एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली वी से दैट SO2 जो है, ये SO2 जो है, CO2 जो है, फिर P4O10 जो है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये सब क्या है, ये सब एसिडिक ऑक्साइड्स है, ये मैं इसी में पढ़ाऊंगा, एसिड बेसिस में पढ़ाऊंगा। दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर एसिडिक ऑक्साइड्स, करेक्ट ना। दैट इज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, मतलब क्या, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे फॉर्म एसिड्स। मगर आर्हीनियस के हिसाब से, आर्हीनियस कंसेप्ट के हिसाब से SO2, NO2, CO2, P2O5 एसिड्स है ही नहीं, जबकि एक्चुअली ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। SO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। क्यों SO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड? बिकॉज SO2 व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स व्हाट, H2SO3. CO2 is an acidic oxide. CO2 when dissolved in water gives what, H2CO3. Getting na? NO2 is an acidic oxide. NO2 when dissolved in water it gives a mixture of HNO3 plus HNO2. They all are acids. Getting ना? उसी तरह से P2O5 या P4O10 is also an acidic oxide. P4O10 when dissolved in water this gives what, H3PO4. Getting ना? ये सब they all are acidic oxides. Actually current classification के हिसाब से they all are what? They all are acidic oxides. They all are acidic oxides. But Arrhenius जो है इनको as an acid classify नहीं करता है because they do not have any hydrogen which can furnish H plus ions. Although जब ये पानी में डिसॉल्व होंगे ये एसिड देंगे H2SO3 which will dissociate to give what, 2H plus plus SO3 minus 2. ठीक है, H2CO3 will dissociate to give what, 2H plus plus CO3 minus 2. Getting ना? HNO3 plus HNO2, nitric acid and nitrous acid. Getting ना? And then this H3PO4, ये सब मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। गेटिंग, तो आर्हीनियस के हिसाब से SO2, CO2, NO2, P2O5 ये सब जो है एसिड्स नहीं है, बिकॉज इनके पास जो है H प्लस आयन नहीं है, मगर एक्चुअली ये एसिड्स है, राइट। फिर उसी तरह it fails to explain the basic nature of compounds like ammonia, Na2CO3 which do not have OH minus ion in the molecule to furnish OH minus ion. Getting ना? बट एक्चुअली हमें पता है अमोनिया जो है ये बेस होता है, मगर फॉर्मूला देख के हमें नहीं लग रहा है कि ये बेस होगा, बिकॉज इसके पास OH माइनस आयन तो है नहीं। गेटिंग ना? सो अमोनिया जो है एक तरह से देखा जाए, अमोनिया जो है दिस इज नॉट एन आर्हीनियस बेस। गेटिंग ना? अमोनिया इज नॉट एन आर्हीनियस बेस। गेटिंग? अमोनिया गैस इज नॉट एन आर्हीनियस बेस। अमोनिया गैस इज नॉट एन आर्हीनियस बेस। ऑल्दो अमोनिया को पानी में डिसॉल्व कर दो, अमोनिया गैस को पानी में डिसॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, NH4OH आ जाएगा। एंड NH4OH जो है दिस विल गिव व्हाट, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। दिस इज एन आर्हीनियस बेस, बट अमोनिया जो है इट इज नॉट एन आर्हीनियस बेस। उसी तरह से यहां पे जो हमने एग्जांपल लिया था इन एसिड्स का, ये यहां पे लिखा था ना मैंने ओवर एयर, SO2, CO2, NO2 दे आर ऑल एसिडिक ऑक्साइड। बट अगर ऐसे कहा जाए SO2, CO2, NO2, P4O10 they are not Arrhenius acids in dry state। ड्राई स्टेट में ये आर्हीनियस एसिड्स नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई भी H प्लस नहीं है। ऑल्दो पानी में डिसॉल्व होकर के ये आर्हीनियस एसिड देंगे। SO2 पानी में डिसॉल्व हुआ, आर्हीनियस एसिड दिया H2SO3, CO2 डिसॉल्व हुआ, आर्हीनियस एसिड दिया H2CO3, NO2 डिसॉल्व हुआ, दो आर्हीनियस एसिड दिए HNO3 एंड HNO2।
गेटिंग ना। उसी तरह से P4O10 पानी में डिसॉल्व हुआ, आरइनएस एसिड दिया क्या है H3PO4, H3PO4 क्या करेगा 3H प्लस क्या PO4 -3 H प्लस आयन दे रहा है, तो H3PO4 आरइनएस एसिड है मगर P4O10 आरइनएस एसिड नहीं है। उसी तरह से यहां पे जो मैंने बताया कि अमोनिया जो है आरइनएस बेस नहीं है, मगर अमोनिया को पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा NH4 आ जाएगा विच इज एन आरइनएस बेस, समझे क्या। उसी तरह से Na2CO3, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे कि Na2CO3 का जो एक्व सोल्यूशन होता है, ये अभी रीजन नहीं बता रहा हूं इसका, Na2CO3 का जो एक्व सोल्यूशन होता है ये अल्कलाइन होता है, बट दिस Na2CO3 जो है दिस इज नॉट एन आरइनियस बेस। Na2CO3 जो है ये आरइनियस बेस नहीं है। क्यों आरइनियस बेस नहीं है? क्योंकि इसके पास इट हैज नो OH माइनस आयंस, क्योंकि एक तरह से देखा जाए इसको पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा Na2CO3 का एक्व सॉल्यूशन विल गिव व्हाट 2Na प्लस क्या CO3 -2, समझे क्या। तो Na2CO3 एक तरह से कोई OH माइनस आयन नहीं दे रहा है, तो वो आरइनियस बेस नहीं है, बट एक्चुअली वो क्या है, वो बेसिक इन नेचर होता है एक्व सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, गेटिंग ना। सो Na2CO3 को भी आरइनियस बेस नहीं मानता, बट एक्चुअली इट इज बेसिक इन नेचर। इस वजह से ये क्या है, ये ड्रॉबैक है किसका, दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ आरइनियस। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक Na2CO3 ammonia which do not have OH minus ion molecules to furnish OH minus in the molecule to furnish what OH minus ions, ठीक है। And then it fails to explain the acidic nature of certain salts such as AlCl3 in the aqueous solution, करेंगे ना। AlCl3 भी जो है AlCl3 this is not an arrhenius acid, this is not an arrhenius acid. Instead अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे that instead this AlCl3 हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, this is actually a Lewis acid, अभी क्लासिफिकेशन आएगा, this is actually a Lewis acid, अभी क्लासिफिकेशन है आगे, बात समझे क्या। तो ये आरइनएस एसिड नहीं है। क्यों आरइनएस एसिड नहीं? बिकॉज AlCl3 के पास कोई भी रिप्लेसेबल H+ नहीं है, और आरइनएस एसिड होने के लिए सब्सटेंस के पास रिप्लेसेबल H+ होना चाहिए, जिसकी वजह से जब वो पानी में डिसॉल्व हो तो वो H3O+ आयन फर्निश करे। AlCl3 ऐसा कुछ नहीं करता, मगर ये एसिडिक नेचर है इसका, ये लुइस एसिड है, मगर ये आरइनियस एसिड नहीं है। AlCl3 जो है ये आरइनियस एसिड नहीं है, ठीक है, राइट। नाउ सिंपल, नाउ लेट अस मूव ऑन टू व्हाट मॉडिफाइड आरइनियस कंसेप्ट। सो मॉडिफाइड आरइनियस कंसेप्ट के बारे में क्या बता रहे हैं, दिस रेक्टिफाइज मोस्ट ऑफ द लिमिटेशंस जो अभी तक देखे हमने। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड आयनाइजेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। H2O will give H+ and OH minus, and H+ combines with water to give what H3O+. तो H2O इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या देगा H2O plus H2O will give what H3O+ OH minus, समझे क्या, ठीक है, राइट। H3O+ is responsible for acidic nature and OH minus is responsible for what basic nature। क्योंकि वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इस वजह से न्यूट्रल वाटर में H3O+ एंड OH माइनस का कंसेंट्रेशन कैसे होंगे, एकदम से कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मैं पहले बता देता हूं, H3O+ जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर या कॉजेस व्हाट एसिडिक बिहेवियर, जबकि OH माइनस जो है दिस कॉजेज व्हाट बेसिक और अल्कलाइन बिहेवियर, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, बिकॉज वाटर जो है कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इस वजह से इन अ न्यूट्रल वाटर amount of H3O+ will be same as amount of OH minus। हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में ही आगे, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, समझे क्या, राइट। तो मॉडिफाइड आरइनियस कंसेप्ट क्या कहता है, एसिड्स को कैसे क्लासिफाई करता है। मॉडिफाइड आरइनियस कंसेप्ट कह रहा है कि द सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ H3O+ in water act as acids
while those which increase the concentration of OH minus in water act as bases. ठीक है, अब ये जो मॉडिफाइड डेफिनेशन है आरईएनएस का, इसने कुछ लिमिटेशंस को रेक्टिफाई कर दिया. जैसे SO2 increases the H2O plus ion concentration, hence it is an acid. कैसे? अभी बताया SO2 plus water क्या देगा? H2SO3, and H2SO3 पानी में will give what? H2O plus plus HSO3 minus. तो इसके हिसाब से क्या, SO2 को मॉडिफाइड आरईएनएस ने SO2 को कवर कर लिया एज एन आरईएनएस एसिड. सिमिलरली अमोनिया बिहेव्स एज अ बेस बिकॉज इट इंक्रीजेस OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन वाटर. किस तरह से? अमोनिया प्लस वाटर क्या देगा? NH4OH, एंड NH4OH विल गिव NH4 प्लस प्लस OH माइनस. करेंगे ना? तो मॉडिफाइड आरईएनएस कंसेप्ट के हिसाब से अमोनिया जो है इज अ आरईएनएस बेस, एंड SO2 जो है क्या बन गया? आरईएनएस एसिड बन गया. ठीक है ना? सो यहां पे क्या लिखेंगे? मॉडिफाइड आरईएनएस कंसेप्ट, मॉडिफाइड आरईएनएस कंसेप्ट के हिसाब से अमोनिया को बेस कंसिडर कर लिया गया, जबकि SO2, CO2, NO2 और P4O10 इनको भी क्या कर लिया गया? एसिड कंसिडर कर लिया गया एज पर द मॉडिफाइड आरईएनएस कंसेप्ट. बट ओनली आरईएनएस कंसेप्ट के हिसाब से अमोनिया इज नॉट अ बेस एंड दीज ऑल आर नॉट एसिड्स. बट मॉडिफाइड आरईएनएस कंसेप्ट इनको एसिड और इसको बेस कंसिडर करता है, बिकॉज मॉडिफाइड आरईएनएस कंसेप्ट क्या कहता है? एनी सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ H2O प्लस इन वाटर इज अ एसिड. ठीक है ना? जैसे सपोज करो SO2 प्लस वाटर, क्या दिया इसने दिया H2SO3. दिस गिव्स व्हाट? H2SO3, and H2SO3 will diprotic acid, it will decompose to give, मतलब dissociate to give what? H plus plus HSO3 minus स्टेप 1 में. ठीक है ना? राइट. तो इसने क्या किया? इसने H प्लस अमाउंट क्या कंसेंट्रेशन कर दिया? बढ़ा दिया वाटर में. ठीक है ना? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं CO2 की, CO2 प्लस वाटर, दिस विल गिव व्हाट? H2CO3 फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. एंड पानी में डिसॉल्व किया तो ये क्या देगा? H प्लस प्लस HCO3 माइनस. करेंगे ना? राइट. तो क्या हुआ? पानी में H प्लस का अमाउंट बढ़ गया. तो मॉडिफाइड आरईएनएस कंसेप्ट के हिसाब से SO2 हो गया, CO2 हो गया. करेंगे ना? राइट. उसी तरह से NO2 हो गए, P4O10 हो गए, ये सब क्या है? एसिड्स हो गए एज पर मॉडिफाइड आरईएनएस कंसेप्ट. उसी तरह से अमोनिया भी क्या हो गया? बेस हो गया. क्यों? बिकॉज अमोनिया को अगर पानी में डिसॉल्व कर दो तो क्या देगा? दिस विल गिव व्हाट? NH4OH, एंड NH4OH का जो एक्वस सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट है, एंड दिस विल डिसोसिएट टू गिव व्हाट? NH4 प्लस प्लस OH माइनस. मतलब पानी में OH माइनस का अमाउंट क्या हो गया? बढ़ गया. इसका मतलब अमोनिया कैन बी क्लासिफाइड एज अ बेस एज पर व्हाट? एज पर मॉडिफाइड आरईएनएस कंसेप्ट. ठीक है. फिर ये सारी चीजें, बेसिसिटी और प्रोटीसिटी ऑफ एन एसिड, मैंने तुम्हें बता दिया कि मोनोबेसिक एसिड क्या होता है, डाई मोनोबेसिक एसिड और मोनोप्रोटिक एसिड. करेंगे ना? डाई बेसिक एसिड और डाईप्रोटिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड और ट्राईप्रोटिक एसिड, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया है उनके डिसोसिएशन के साथ. ठीक है. तो मैं इसको पीडीएफ को फॉरवर्ड कर दूंगा, इसको तुम एक बार देख सकते हो ये टेबल. राइट. आगे बढ़ते हैं. नाउ उसके बाद हाँ, ये सब तुम देख सकते हो, ये सब अपने आप से पढ़ सकते हो, सब मैं पढ़ चुका हूं. उसी तरह से एसिडिटी ऑफ अ बेस, एसिड जैसे बेसिसिटी ऑफ एन एसिड होता है, उसी तरह से क्या होता है? एसिडिटी ऑफ अ बेस होता है. ठीक है. तो एसिडिटी और हाइड्रोक्सिसिटी ऑफ अ बेस इज द नंबर ऑफ acidity or hydroxicity of the base is the number of hydroxyl ions produced from one molecule of the base on dissociation. Base liberating 1, 2 or 3 OH minus are respectively known as monoacidic or monohydroxic, diacidic or dihydroxic, और ट्राइएसिडिक और ट्राइहाइड्रोक्सिक रिस्पेक्टिवली. जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे ऑल आर व्हाट? मोनोएसिडिक बेसिस, क्योंकि वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस हैज गॉट ओनली वन OH माइनस. जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, गेटिंग ना, दे आर व्हाट? डाइएसिडिक और डाइहाइड्रोक्सिक बेसिस. गेटिंग ना? गेटिंग. तो ये सिंपल चीज है. हमें अभी ब्रॉन्स्टेड में आगे बढ़ना है, इसको जल्दी से देख लेते हैं. NaOH क्या बता रहा है? NaOH, KOH, करेंगे ना, RbOH, CSOH, NH4OH, राइट. तो इनको डिसोसिएट करो, क्या आएगा? H प्लस प्लस OH माइनस. ये क्या देगा? K प्लस प्लस OH माइनस. ये क्या देगा? Rb प्लस प्लस OH माइनस.
ये क्या देगा CS प्लस प्लस OH माइनस, ये क्या देगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये सब क्या है, दे ऑल बिकम व्हाट, मोनो एसिडिक बेसिस, दे ऑल आर मोनो एसिडिक बेसिस। बात समझे क्या? ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड की, ये क्या देगा Ba प्लस टू OH माइनस। ठीक है, राइट। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ये क्या देगा Ca प्लस टू OH माइनस। ये क्या हो गए, दे बिकम व्हाट, दे बिकम डाई एसिडिक बेस। गेटिंग? ऑन द अदर हैंड इफ वी जस्ट टॉक अबाउट AlOH होल थ्राइस, ये क्या देगा Al प्लस 3 OH माइनस। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ट्राई एसिडिक बेसिस। बात समझे क्या? अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं बता देता हूं, एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं। ऑल एल्कली के बारे में मैं बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। एल्कली जो होता है, एल्कली इज अ वाटर सॉल्युबल बेस। एल्कली इज अ वाटर सॉल्युबल बेस। मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं, बिकॉज ऑल बेसेस डू नॉट dissolve in water. All bases do not dissolve in water. जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप 1 में, if we just talk about group 1, LiOH, NaOH, KOH, RbOH and what, CSOH, ये सब पानी में बिंदास डिसॉल्व होते हैं। वैसे ये सब हमें पढ़ना है आगे। They all dissolve in water to give what, Li plus aqueous, Na plus aqueous, right, K plus aqueous, Rb plus aqueous and CS plus aqueous along with what, OH minus. तो ये सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, they all are what, alkalis. They all are what, all group 1 bases are alkalis। करेंगे ना। बट अगर हम लोग बात करें ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है सॉल्युबल है, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज अ सॉल्युबल बेस इन वाटर, जबकि रेस्ट ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्रुप 2 की बात करते हैं, जैसे BeOH होल ट्वाइस, ग्रुप 2 की अगर हम बात करें BeOH होल ट्वाइस, बेरिलियम मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस, करेंगे ना, स्ट्रॉन्शियम SrOH होल ट्वाइस एंड BaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टार्टिंग वाले जो हैं ये दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सो दे आर बेसिस बट दे आर नॉट एल्कलीज। समझे क्या? जो बेसिस इनसॉल्युबल इन वाटर उनको एल्कली नहीं बोला जाता है, जबकि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज ए एल्कली इन वाटर बिकॉज ये सॉल्युबल इन वाटर है। करेंगे ना, तो यहां से एक सिंपल पॉइंट ये निकलता है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। बात समझे क्या? उसी तरह से जैसे अगर हम लोग बात करते हैं AlOH होल थ्राइस की, AlOH होल थ्राइस, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट AlOH होल थ्राइस, तो ये जो है दिस इज अ इनसॉल्युबल बेस, इनसॉल्युबल बेस इन वाटर, देयरफॉर AlOH होल थ्राइस जो है, AlOH होल थ्राइस जो है दिस इज नॉट एन एल्कली। ये बेस है नो डाउट, मगर ये जो है ये एल्कली नहीं है, दिस इज नॉट एन एल्कली। आई होप सो ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद
ये पढ़ लेना। एसिडिटी का एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन दिया गया, एसिडिटी मे बी कंसिडर्ड एज द नंबर ऑफ H plus ions that can be accepted by one molecule of the base. Acidity of the base का एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन दिया गया है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ H plus ions which can be accepted by one molecule of the base. गेटिंग ना? उसी तरह से यहां पे पिछले पेज में basicity of an acid is the number of hydrogen ions which can be furnished by one molecule of the acid upon dissociation. गेटिंग ना? राइट, तो ये डेफिनेशंस को देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। नाउ अब देखो जरा आगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये बता दिया गया ऑलरेडी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह ये सब मैंने बता दिया था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ये बता दिया, ये बता दिया, Ka Kb के बारे में बता दिया, ठीक है। तो एसिड्स विच आर हाईली आयनाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, विच आर हाईली आयनाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज गिव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर नोन एज व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। The K value of strong acid, मतलब dissociation constant is more than 0.1, जैसे HClO4, HNO3, H2SO4, HCl, they are what? Very strong acids. The K value is very small for weak acids, मतलब वो एसिड जो ज्यादा डिसोसिएट नहीं करते, जैसे CH3COH, H3PO3, H2CO3, H3BO3. Getting ना? For example, K value of acetic acid is very small. In other words, in case of weak acid, the ionization is only very slight. मतलब क्या अल्फा जो है बहुत कम होता है, and the major part remains as undissociated molecules. वो सब मैंने बता दिया, strong electrolyte and weak electrolyte. उसी तरह से same goes for what? bases. मैंने bases बताया था, bases of group 1 as well as group 2 में barium hydroxide, they are what? strong bases, rest are what? weak bases. getting ना? तो इसको पढ़ लेना। Now next let us move on to the very important concept जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है किसमें, आयनिक इक्विलिब्रियम में, is what? Bronsted-Lowry concept. very important, Bronsted-Lowry concept. ठीक है, राइट। तो ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट के हिसाब से मैं यहां पे आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कंसेप्ट, राइट। तो इसके हिसाब से सबसे पहला अगर देखा जाए ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, व्हाट इज द ब्रॉन्स्टेड एसिड। अभी देखो ये तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है, मगर ऑर्गेनिक तुमने इसमें सारी चीजें नहीं पढ़ी है, तो इसको स्किप मत करना, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आयनिक इक्विलिब्रियम में लगती है मगर ऑर्गेनिक में तुमने नहीं पढ़ा हुआ है, तुमने बस एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है ना। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको देख लो, सुन लो ध्यान से। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर proton donors. Bronsted acids are proton donors. बात समझ में आई क्या? जबकि ब्रॉन्स्टेड बेसेस क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेसेस आर proton receptors. Bronsted bases are proton receptors. Bronsted acids are proton donors. Proton मतलब क्या, proton मतलब क्या, H plus donors. And Bronsted bases are proton receptors मतलब क्या, H plus receptor. मतलब क्या, any substance which can give H plus ions, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा H plus ion, इंपॉर्टेंट है, इन एनी सॉल्वेंट। यहां पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि सॉल्वेंट जो है वाटर ही होना चाहिए, तो एनी सब्सटेंस विच कैन गिव H plus ion इन एनी सॉल्वेंट इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। ऐसा सब्सटेंस जो H plus आयन दे किसी भी सॉल्वेंट में,
उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ब्रॉन्स्टेड एसिड। समझे क्या? जबकि ऑन द अदर हैंड एनी सब्सटेंस which can accept H plus ions in any solvent, उसको क्या बोला जाएगा? In any solvent that is known as a Bronsted base। getting ना? राइट। तो ये क्या है? ये बेसिक, सबसे पहली ये बेसिक डेफिनेशन है ब्रॉन्सेड एसिड एंड ब्रॉन्सेड बेस की। ब्रॉन्सेड एसिड्स आर H प्लस डोनर्स, जबकि ब्रॉन्सेड बेसेस आर H प्लस रिसेप्टर्स। ठीक है, राइट। तो यहां पे जैसे अब देखो जरा, चलो पहले टेक्स्ट में क्या लिखा है पहले वो पढ़ाता हूं, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है पहले वो पढ़ाता हूं, फिर हम लोग आगे इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, वन बाय वन करके चलते हैं। राइट, तो दिस कंसेप्ट, एज पर दिस कंसेप्ट, सबसे पहली बात, एसिड्स आर द स्पीशीज विच आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग द प्रोटॉन इन द रिएक्शन, बता दिया। while bases are the species which are capable of accepting the proton in a reaction, that is acids are proton donors, that means they are protogenic। proto मतलब proton, genic मतलब to generate, मतलब they give the proton, getting ना? and bases are proton acceptors, मतलब they accept the electron, protophilic, accepting मतलब attracting the electron, proto मतलब proton, philic मतलब attraction, getting ना? so they are proton acceptors, getting ना? राइट, सो बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, अब देखो अब देखो सिंपल सा एग्जांपल है। सिंपल सा एग्जांपल हमने यहां पे क्या लिया है, जैसे ओवर हेयर यहां पे अगर हम बात करें, देखो अब यहां से मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ब्रॉन्सेड एसिड कंसेप्ट में सुनना बात को ध्यान से। Tendency of a substance to give H plus or to accept H plus in a, yeah, first of all, no substance ऐसे बताता हूं, in a solution tendency to give H plus or to accept H plus depends on the tendency of the solvent, या पहले सिंपल टर्म्स में, डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट, डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं क्या लिख रहा हूं,
सेकेंड पॉइंट जो मैं बता रहा हूं क्या है, वो ये है कि no substance is an absolute acid or an absolute base. That is acidic or basic behavior of a substance is relative with respect to the solvent present. अभी सब समझ में आएगा. मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा कि इन अ सोल्यूशन टेंडेंसी टू गिव H प्लस और टू एक्सेप्ट H प्लस डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट प्रेजेंट. उसी पॉइंट को मैंने यहां पे थोड़ा और इलैबोरेट किया है कि नो सब्सटेंस इज एन एब्सोल्यूट एसिड और नो सब्सटेंस इज एन एब्सोल्यूट बेस. करेक्ट ना? दैट मींस एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस इज रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट प्रेजेंट. अब देखो किस तरह से if the solvent is a better, देखो किस तरह से, if in a solution both solute and solvent can give H plus as well as if in a solution both solute and a solvent they can give H plus, therefore they can give H plus as well as, या फिर ये नहीं बताता, पहले और सिंपल करता हूं और ब्रेक करता हूं इसको. और थोड़ा और सिंपल करता हूं. A substance behaves as a Bronsted acid in a substance behaving as a Bronsted acid, मतलब क्या, tendency to give H plus. Substance behaves as a Bronsted acid in a particular solvent. अब सुनना ध्यान से. Only if, IFF मतलब if and only if substance has a tendency to donate H plus, has a better tendency, has a better tendency to donate H plus. किसको donate H plus? सोचो ना, हमने सीधा सीधा क्या बोल दिया, हमने सीधा सीधा यहां पे एक चीज सीधे सीधे बोल दी. डायरेक्टली हमने बोली क्या, वेरी डायरेक्टली वी हैव सेड दैट कि ब्रॉन्सेड एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स. मतलब ब्रॉन्सेड एसिड जो प्रोटॉन देते हैं, किसको प्रोटॉन देते हैं, किसको देते हैं प्रोटॉन. ब्रॉन्सेड एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स. इसको कंप्लीट करते हैं. मतलब क्या, दे गिव प्रोटॉन मतलब H प्लस टू द सॉल्वेंट. समझे क्या? कैरिंग राइट. इसका मतलब क्या, अगर कोई सब्सटेंस का प्रोटॉन देने का टेंडेंसी है,
मगर सॉल्वेंट का प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी नहीं है। तो सब्सटेंस तो रेडी है प्रोटॉन देने के लिए, मगर सॉल्वेंट प्रोटॉन नहीं ले रहा है, तो उस केस में क्या होगा, सब्सटेंस विल नॉट गिव H+। वो चीजें बाद में आती हैं, ठीक है। तो पहले इसको देखो, ब्रॉन्सेड एसिड्स आर प्रोटॉन नोन एज, दे गिव प्रोटॉन H+ टू द सॉल्वेंट, समझे क्या, राइट। जबकि ब्रॉन्सेड बेसिस दे आर प्रोटॉन रिसेप्टर्स, दे कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन, गेटिंग ना, राइट। They can donate proton to the solvent Bronsted acids are proton donors. That means they can give proton to the, first of all, Bronsted bases, and Bronsted base की category में it can be a solvent also. अभी एक्सप्लेन करता हूं, इट कैन बी अ सॉल्वेंट ऑल्सो, बात समझे क्या। जबकि ब्रॉन्सेड बेसेस आर व्हाट, ब्रॉन्सेड बेसेस आर प्रोटॉन रिसेप्टर्स। तो मतलब क्या, प्रोटॉन कहां से एक्सेप्ट करेंगे, ब्रॉन्सेड बेसेस आर प्रोटॉन रिसेप्टर्स, मतलब क्या, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, कहां से एक्सेप्ट करेंगे, मतलब क्या, दे एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, दे एक्सेप्ट प्रोटॉन्स from they can accept protons from where, Bronsted acids, correct na, and Bronsted acids can be सॉल्वेंट ऑल्सो, सॉल्वेंट भी ब्रॉन्सेड एसिड हो सकता है, अभी आगे एग्जांपल आएगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या पॉइंट बता रहा था इसके बारे में, आई वाज टेलिंग सर्टेन पॉइंट्स। हाँ, तो अ सब्सटेंस बिहेव एज अ ब्रॉन्सेड एसिड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में सब्सटेंस ब्रॉन्सेड एसिड की तरह तभी बिहेव करेगा इफ द सब्सटेंस हैज अ बेटर टेंडेंसी टू डोनेट H+ एंड, भाई ये तो रेडी H+ देने के लिए, कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए ना H+, गेटिंग ना। तो सॉल्वेंट मस्ट हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट दैट H+, मतलब दैट मीन्स सॉल्वेंट as a must behave as a what, Bronsted base. Solvent must behave as a proton acceptor. Bronsted must behave as a proton, must behave as a solvent, must be a proton receptor. That means a Bronsted base, गेटिंग ना। अगर सॉल्वेंट प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो सब्सटेंस जो हमने डिसॉल्व किया वो प्रोटॉन किसको देगा, किसी को नहीं देगा ना, गेटिंग ना, राइट। सो ब्रॉन्सेड एसिड इन पर्टिकुलर, substance behave as a Bronsted acid in a particular solvent if and only if substance has a better tendency to donate H+, and solvent must have the tendency to accept that what, to accept that H+. Getting, on the other hand, substance, on the other hand, substance behaves as a Bronsted base कब, if and only if there exists Bronsted acid in the solution.
अगर सोल्यूशन में ब्रॉन्सेड एसिड है तभी सब्सटेंस, दूसरा सब्सटेंस ब्रॉन्सेड बेस की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब सोल्यूशन में कोई तो प्रोटॉन डोनर होना चाहिए, तभी तो ब्रॉन्सेड बेस अपना प्रॉपर्टी दिखा पाएगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का। जब तक सोल्यूशन में प्रोटॉन डोनर ही नहीं है, गेटिंग ना, मतलब जब तक सोल्यूशन में ब्रॉन्सेड एसिड नहीं है तब तक सब्सटेंस प्रोटॉन कहां से एक्सेप्ट करेगा। गेटिंग राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स नेसेसरी हैं। तो यहां पे मैंने क्या बताया, तो जैसे हमने यहां पे देखा कि कंसिडर द रिएक्शन, अभी सारी चीजें क्लियर होती हैं। कंसिडर द रिएक्शन HCl plus H2O gives H3O plus plus Cl minus। यहां पे क्या है, यहां पे क्या बता रहे हैं कि HCl acts as an acid because it donates a proton to water molecule। वाटर मॉलिक्यूल ऑन द अदर हैंड बिहेव्स एज अ बेस बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। वही तो मैं बता रहा हूं कि HCl यहां पे ब्रॉन्सेड एसिड क्यों है, बिकॉज HCl का टेंडेंसी है प्रोटॉन को देने का, और साथ में वाटर प्रेजेंट है जिसका टेंडेंसी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का। अगर वाटर का प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ना होगा, नहीं होगा, तो HCl प्रोटॉन किसको देगा, किसी को नहीं देगा। गेटिंग ना, राइट। तो सब्सटेंस ब्रॉन्सेड एसिड तभी बिहेव करेगा जब सोल्यूशन में कोई दूसरा सब्सटेंस उसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए बैठा है। मतलब जब सोल्यूशन में कोई दूसरा ब्रॉन्सेड बेस है तभी ब्रॉन्सेड एसिड एग्जिस्ट करेगा। अगर सोल्यूशन में ब्रॉन्सेड बेस है ही नहीं है तो ब्रॉन्सेड एसिड कैसे एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह से वाइसी वर्सा, कोई भी सब्सटेंस ब्रॉन्सेड बेस की तरह तब बिहेव करेगा सोल्यूशन में अगर सोल्यूशन में ब्रॉन्सेड एसिड है, मतलब प्रोटॉन देने वाला होना चाहिए तभी तो प्रोटॉन लेगा ना। गेटिंग ना, राइट। तो वही चीज बता रहे हैं कि यहां पे HCl plus H2O gives H3O plus plus Cl minus। In this reaction, HCl acts as an acid because it donates a proton to the water molecule. Water, on the other hand, behaves as a base by accepting a proton from the acid. Getting right? तो जैसे हमने ये वाला सिंपल सा रिएक्शन लिखा, सिंपल, बहुत सिंपल सा रिएक्शन हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, HCl plus water, HCl plus water, यहां पे क्या आया, यहां पे आया H3O plus plus Cl minus। तो बेसिकली ये क्या है, HCl जो है ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन दे सकता है H plus plus Cl minus, एंड वाटर जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और क्या बना लेगा, H3O plus। गेटिंग। तो यहां पे क्या आ गया, यहां पे हमारे पास क्या आ गया, यहां पे हमारे पास आ गया HCl plus water गिविंग व्हाट, H3O plus plus Cl minus। तो ये HCl क्या हो गया, ये HCl हो गया यहां पे ब्रॉन्स्टेड एसिड। ये वाटर यहां पे क्या बिहेव कर रहा है, वाटर इज बिहेविंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। गेटिंग ना, राइट। तो ये चीज है। उसी तरह से सम अदर एग्जांपल्स आर, जैसे CH3COH plus water gives what, H3O plus plus CH3CO minus। मतलब क्या यहाँ पे CH3COH is having the tendency to give H plus and water is having a tendency to accept that H plus from CH3COH। Getting ना, right? So इस वजह से CH3COH is acting as a Bronsted acid। Getting right? तो CH3COH के बारे में क्या बता रहे हैं, CH3COH ये क्या देगा, CH3CO minus प्लस, अभी समझ गए होगे, प्लस H plus, एंड वाटर जो है दिस कैन एक्सेप्ट द H plus टू गिव व्हाट, H3O plus। तो ये क्या बना हमारे पास, ये हमारे पास बन के आया CH3COOH plus H2O, and this will give what, this will give CH3COO minus plus H3O plus। तो यहां पे CH3COOH is behaving as what, this is behaving as Bronsted acid and this is behaving as a Bronsted base। ठीक है, राइट। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स है। अभी ये मैंने स्टार्ट किया ब्रॉन्सेड एसिड, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी से ये बहुत लंबा डिस्कशन जाता है। तो आज के लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करता हूं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक बताया आज, एकदम बस एक तरह से स्टार्ट किया ब्रॉन्सेड एसिड एंड बेस। ठीक है, ज्यादा बताया नहीं उसके बारे में, राइट। तो इसमें मैंने जो पॉइंट्स बताए, इन वाले पॉइंट्स को मैंने इलैबोरेट नहीं किया है अभी।
ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि इन अ सोल्यूशन टेंडेंसी टू गिव H प्लस और टू एक्सेप्ट H प्लस डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट प्रेजेंट। अभी ये इलैबोरेट नहीं किया है। नो सब्सटेंस इज एन एब्सोल्यूट एसिड और बेस, मतलब कोई भी सब्सटेंस ऑल थ्रू आउट एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, कोई भी सब्सटेंस ऑल थ्रू आउट बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। इट इज एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंसेस रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट प्रेजेंट। अभी मैंने इसको इलैबोरेट नहीं किया है, मैंने अभी बस पॉइंट्स लिखे हैं, अभी आई हैव नॉट इलैबोरेटेड द पॉइंट्स, गेटिंग राइट। एंड देन ये वाला पॉइंट मैंने थोड़ा सा भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।